You know why? पता है Because क्यों? I'm a son. क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. Because I'm a son. क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा And हूँ. all things have been put under the feet of sons. और सारी बातें परमेश्वर के बेटों के पांव तले रख दी गई हैं. So there is nothing that the enemy can throw against you that you cannot walk in dominion over. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुश्मन आपके विरोध में ला सकता है जिस पर आप प्रभुता नहीं कर सकते. Jesus gave you his own place. यीशु ने आपको अपना स्थान दे दिया. Amen. Are you getting this, church? You were always created to be a son. आप बनाए ही एक बेटे के स्वरूप में गए थे. But when sin entered, our DNA was corrupted. लेकिन जब पाप ने प्रवेश किया तो हमारी बनावट भ्रष्ट हुई. And we could no more function as a son. और तब हम परमेश्वर के बेटे की तरह काम नहीं कर सकते थे. That's why the Bible says, as many as received him, to them he gave the power to become the sons of God. इसीलिए बाइबल कहती है जितनों ने उसको ग्रहण किया परमेश्वर ने उनको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया. He gave you, he restored the authority back to you so that you can function as a son. उसने वो अधिकार आपको वापस इसीलिए लौटाया कि आप परमेश्वर के बेटे के स्वरूप में जी सकें, काम कर सकें. That's why the greatest title you can get on this earth is a son. इसीलिए सबसे बड़ा ओहदा जो इस पृथ्वी पर किसी को भी मिल सकता है वो है परमेश्वर का बेटा होने का. That's why the Bible says now the creation is groaning for the manifestation of apostles, no prophets, no pastors, no reverends, no. इसीलिए बाइबल कहती है कि सृष्टि कर्रा रही है परमेश्वर के प्रेरितों का नहीं, भविष्यवक्ताओं का नहीं, प्रचारकों का नहीं. The creation doesn't respond to the voice of apostles. Don't misunderstand what I'm saying. सृष्टि प्रेरितों की आवाज को नहीं जवाब देती. गलत ना समझे जो मैं कह रहा हूं. The creation doesn't respond to missionaries. सृष्टि मिशनरीज की आवाज को जवाब नहीं देती. The creation responds to the sound of sons. सृष्टि जवाब देती है बेटों की आवाज को. The creation has to obey the sound of a son because to a son all things were put under his feet. सृष्टि को जवाब देना पड़ता है उस बेटे को क्योंकि बेटे के पांव के तले परमेश्वर ने सब कुछ रख दिया था. Are you getting it? It's about us being restored back to our image of son. ये हम हैं जो वापस उस बेटे की तस्वीर में लौटाए जाते हैं. The greatest position that you can function is that of a son of God. वो सबसे बड़ा स्थान जहां से आप जिंदगी जी सकते हैं वो है परमेश्वर का बेटा होने का स्थान. Amen. And as many as believed him, to them he gave the power, the authority to manifest as a son of God on this earth. और जितनों ने उस पे विश्वास किया उनको उसने अधिकार दिया वो सामर्थ्य में परमेश्वर के बेटे के स्थान में चलने और फिरने का. Amen, church. Are you alive? Are you getting it? Okay, so you know what? So that you get it, the mandate that was given to Adam, who was a son, was the mandate of dominion. और जो मकसद परमेश्वर ने आदम को बनाया उसको जो काम दिया वो काम था प्रभुता और राज्य करना. So what God said, my son Adam, I'm going to put everything under his feet and he's going to walk in dominion. So परमेश्वर ने ये किया जब उसने सारी सृष्टि को बना दिया तो उसने कहा मेरा बेटा जो है आदम मैं उसके अधिकार के अधीन सारी बातों को कर दूंगा और वो उस पे राज्य करेगा. So the first thing that was told to Adam and Eve after God created them, he blessed them and then he said, I want you to have dominion over the fish of the sea, the fowls of the air, every creeping thing that creeps on the face of the earth. और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले उसने उनको आशीष दी और फिर कहा मैं चाहता हूं कि तू प्रभुता करे आकाश के पक्षियों पर, पानी में जितनी मछलियां हैं उन पर और पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं पर. So right now on this earth, तो इस समय इस पृथ्वी पर you are on a training assignment. आप एक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हैं. The training is learning to walk in dominion. और वो प्रशिक्षण है अधिकार में जीना. So everything that comes against you, तो जो कुछ आपके विरोध में आता है you can receive it as why me?
तो आप उसको या तो ऐसे ग्रहण करें कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, हमने तो किसी के लिए बुरा नहीं किया, हम तो किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? we never do anything bad for anyone, we never wish Have you heard anything this? bad for anyone, then why This does it is, happen to I mean, us? like, whenever I meet people, they say the same thing. जब कभी मैं लोगों से मिलता हूँ वो यही कहते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया। We quickly flip to a helpless victim mentality. हम बहुत ही जल्दी वो मानसिकता धारण कर लेते हैं जहां पर हम तो बेचारे हैं, हम तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। मैं तो ज्यादा मीठा भी नहीं खाता, मुझे शुगर क्यों हो गई, मैं तो ज्यादा चिंता भी नहीं करता, मुझे ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, यू नो, स्टफ लाइक दैट. But on this earth, you have to see everything that is coming against you as training. लेकिन इस पृथ्वी पर जो कुछ आपके विरोध में आता है, जरूरी है कि आप उसको एक प्रशिक्षण की तरह देखना शुरू करें। You can either look it as sovereignty of God. Oh, या तो God did this with me. या तो आप उसको ये ऐसे देख सकते हैं कि परमेश्वर जो करता है, परमेश्वर ने मेरे साथ किया है ये। Or you can see it as I am a son and I have the power to rule over this situation. और या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरे पास अधिकार है इस परिस्थिति पर राज्य करने के लिए। Amen. So when a sickness knocks at the door of your heart, तो जब एक बीमारी आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, you can either say, huh, तो या तो ये कहें अरे, or you can say, no, I am gonna overcome this sickness. या फिर आप कहें नहीं, मैं इस बीमारी पे जय पाता हूं। You know why? पता है Because I am क्यों? a son. क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। Because I am a son. क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा And हूं। all things have been put under the feet of sons. और सारी बातें परमेश्वर के बेटों के पांव तले रख दी गई हैं। So there is nothing that the enemy can throw against you that you cannot walk in dominion over. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुश्मन आपके विरोध में ला सकता है जिस पर आप प्रभुता नहीं कर सकते। Amen. Are you getting this, church? You know, God is saying emergency. Hear the word. Okay. Yeah. Emergency से एक चीज याद आई. What we do is we wait until we come in crisis. तो हम क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं उस घड़ी तक का जब तक जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या ना आ Like जाए। Neha was saying, when crisis came, then she said, I need to go back to the word. और जैसे नेहा बता रही थी अपनी गवाही में, जब समस्या आई तो उन्होंने कहा मुझे वचन में जाना पड़ेगा वापस। When crisis comes, जब समस्या आती है, then you want to go to the solution. जब समस्या आती है तो हम समाधान की तरफ जाते हैं। But what if you start walking in the lifestyle of victory every day? लेकिन क्या होगा अगर हम जय की जिंदगी हर रोज जीने लग गए? What if you enroll yourself to training to the word of God every day? अगर अपने आप को उस प्रशिक्षण में भर्ती कर लिया जहां हर रोज हम परमेश्वर के वचन से सीखें। Amen, church? You know, God spoke and these galaxies and these universes were created. परमेश्वर ने बोला और पूरे ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं की रचना हो गई। And in Job 22:28, you know, God says, you shall decree a thing and it shall be established unto you. और अय्यूब 22 उसका 28 वचन कहता है जो घोषणा तू करेगा वो तेरे लिए स्थापित हो And जाएगी। we declare और हम घोषणा करते हैं and things happen, और चीजें होती but हैं, there is a delay. लेकिन उसमें देरी है कुछ। I don't know why that happens, but it's also a blessing. मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन ये बहुत अच्छी आशीष भी है। Because I always say, people say, हाय मेरा सर फट रहा है. If you are walking in the fullness of your authority, the moment you said that, हाय मेरा सर फट रहा है, क्योंकि अगर हम अपने शब्दों में उस अधिकार में चल रहे हो जहां पर जो हम कहते हैं वो वैसे ही हो जाएगा, तो लोग बहुत सारी गलत बातें बोलते हैं उसी समय उनके साथ हो जाएंगी। Amen. But before that, I want you to see this thing. You know, God puts Adam in the Garden of Eden, परमेश्वर आदम को उस अदन की वाटिका में रखते हैं and there is abundance there. और वहां बहुत आए थे। There's everything that he will ever need. सब कुछ वहां पर है जो कुछ उसको चाहिए होगा। And he's told to have dominion. और उसको बताया गया कि यहाँ पर प्रभुता और राज्य करना है तुमने। And then sin enters, और फिर पाप प्रवेश करता है and Adam is sent out of the garden. और आदम को उस वाटिका से बाहर भेज दिया जाता है। And from the mindset of dominion, Adam comes into the mindset of survival.
और राज्य और प्रभुता की मानसिकता छोड़ करके आदम अब मानसिकता धारण कर लेता है जिंदा बचे रहने की। And the tragedy is that so many people in the church are still living with survival instinct. और दुख की बात यह है कि आज भी कलीसिया में बहुत से लोग इसी मानसिकता को लेकर जी रहे हैं, जिंदा बचे रहना। Adam is in a place where there is abundance. आदम एक ऐसी जगह पर है जहां पर बहुतायत है। He never tells Eve, अरे वो सेब लगे हैं फ्रेश 2 बोरी भर के रख लो। He doesn't have to do that. So he doesn't have to tell Eve that, apple tree has given fresh He knows fruits. that if there is a provision, वो जानता है अगर I'm sorry, if there is a need, there is already a provision for it. आदम ये जानता है इससे पहले कि कोई जरूरत उठे उसके लिए परमेश्वर ने पहले से ही पूरी कर दी है वो। And I want to tell you today, no matter what your need is, there is already a provision out there. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, पहले से उसके लिए परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। God has kept a provision. परमेश्वर ने उसके लिए जो पूरा करने के लिए चाहिए वो रख दिया है। Amen. And this, when Adam is now sent out of the garden, और अब जब आदम को बगीचे से बाहर भेजा गया and death entered, और मृत्यु ने प्रवेश कर लिया, now he thinks, I have to keep myself alive, I have to keep my wife alive. अब वो ऐसे सोचता है कि मुझे अपने आप को जिंदा रखना है, मुझे अपनी पत्नी को जिंदा रखना है। So instantly तो उसी समय he starts hoarding. वो ऐसा सोचता है कि मैं जमाखोरी करता हूं अब। No, he goes into hoarding. और वो जमाखोरी करने लगता है। If he finds a food, कोई खाना मिलता है he'll have to save it. उसको बचाता है वो। What if I'll not get next meal? अगर अगली बार खाना ना मिला तो क्या होगा? Have you heard that? सुना है ऐसा? अरे फ्यूचर इमरजेंसी आ गई तो। So many of us don't even realize we are still living in survival mode. हमें से बहुत ही लोग समझते भी नहीं कि आज भी हम उस मानसिकता में जी रहे हैं जहां अपने आप को जिंदा बचाए रखना चाहते हैं हम। Adam became his own provider. Adam becomes his own protector. आदम अपने खुद के लिए सारी चीजों का बंदोबस्त करने वाला बन जाता है, अपने लिए अपना सुरक्षा करने वाला बन जाता है। You know, there's a beautiful prophetic picture if you see when God brings Israelites out of Egypt. एक खूबसूरत तस्वीर है इस बात में जब परमेश्वर इजराइल को इजिप्ट से निकाल कर ले For आता है। 40 years, God fed them with manna. 40 साल तक परमेश्वर उनको मन्ना बरसा कर खिलाता है। Think about it, 40 years. 40 साल। But God tells them, लेकिन परमेश्वर उनसे ये कहता है only take that much, that will be sufficient for you and your family. सिर्फ उतना ही लेना जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए काफी हो, And don't hoard. और जमाखोरी मत करना। But some people, लेकिन कुछ लोग जमा कर लेते हैं। and the Bible says their manna gets rotten. और बाइबल कहती है जो मन्ना उनके पास जमा था वो सड़ गया। And the people who took little, it was always sufficient for them. और जिन लोगों ने कम लिया था वो उनके लिए काफी रहा। Amen, church. Are you getting this? He wants to be a constant source. Even, when the Bible says that the word is a lamp unto our feet, the word is not a floodlight unto our feet. वो निरंतर जीवन भर वो हमारा सोता बने रहना चाहता है। वचन कहता है कि उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, हमारे पांव के लिए वो बहुत दूर तक की रोशनी नहीं है, हमारे पांव तक के लिए दीपक है वो। It's a lamp. वो एक दीपक की तरह है। The lamp will not show you the entire path. The lamp will only lighten up next step so that you know when you take the lamp. So it's the walk with the God. He will not reveal you. Okay, you come, this will happen that day, this month. No. He wants you to learn to trust him. And it's one step at a time. और दीपक का ये काम नहीं कि वो पूरे रास्ते में रोशनी कर दे, लेकिन वो आपके अगले कदम तक रोशनी कर सकता है ताकि आप एक एक करके कदम बढ़ाते चले जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि आपको वो सिखाए कैसे आप परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं इस दौर में, इस जीवन में, कि आप उस पे भरोसा करते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए चलते चले जाएं। अब्राहम, come out of your father's house. अपने पिता के घर से बाहर आ जा, To a place एक ऐसी जगह के लिए I will show you. जो मैं तुझे दिखा। Okay, Abraham says where? तो अब्राहम कहता है कहाँ? South Delhi, East Delhi, साउथ दिल्ली जाना है, West Delhi. वेस्ट। Will there be Starbucks nearby? आसपास स्टारबक्स होगा। When will the next instruction come? अगला निर्देश कब मिलेगा? The next instruction will come when you will obey the first that is given to you. परमेश्वर
अगला निर्देश या अगला क्या करना है तब बताएगा जब आपने वो पूरा कर लिया जो उसने इससे पहले करने के लिए कहा था. So Abraham comes out of his father's house, तो अब्राहम अपने पिता के घर से बाहर आते हैं, obeyed the instruction, पहली बात को पूरा किया, and then God begins to give him another one. और फिर परमेश्वर अगला निर्देश You know, I देते हैं. always think that our walk with the Lord is very much like the conversation between the pilot and the ATR, you know. और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा परमेश्वर के साथ जीवन है वो उस बातचीत जैसा है जो एक एयरलाइन के पायलट और जो ट्रैफिक कंट्रोल वाले हैं उनके बीच में होता है. Okay, so you know that the pilots who fly Boeing and all, it's a non-visual flight. They cannot see and fly. They cannot मन करा तो लेफ्ट मोड़ दो, मन करा तो राइट मोड़ दो. No. जो पायलट्स बोइंग और ऐसे बड़े जहाज चलाते हैं उड़ाते हैं, उनको बिना देखे चलाना पड़ता है, वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं मोड़ सकते. It's called a non-visual flight. And you know, pilots, they are told not to wear earphones a lot because it will damage their hearing. और इसीलिए पायलट्स को निर्देश होता है कि ज्यादा ईयरफोन में म्यूजिक ना सुने, कुछ चीजें ना सुने, उनके कान, उनके सुनने की क्षमता खराब ना हो, खत्म ना हो. Because their life क्योंकि उनकी जिंदगी and the depends upon their hearing. और जितने लोग उनके साथ बैठे हैं उस जहाज में, उन सबकी जिंदगी निर्भर है उनके सुनने पर. Jesus said, take heed how you hear. यीशु ने कहा ध्यान रखो तुम कैसे सुनते हो. Amen. Some people hear garbage all the time, you know, crime petrol and this and that, और वो शर्मा आंटी ने ये बोला, वर्मा आंटी ने ये बोला, और ये, you know, and then it's take heed what you hear. कुछ लोग हमेशा व्यर्थ की बातें सुनते हैं और अपने आप को उससे भर लेते हैं, लेकिन ध्यान दें आप क्या सुनते हैं. Can I tell you a very easy secret to walk in dominion? एक बहुत आसान रहस्य बताता हूँ जय में जीने का. How many people want to know that? It's very easy. Become deaf to bad news. प्रभुता में जीने का एक बहुत आसान रहस्य है, बुरी खबर के लिए बहरे हो जाओ. Don't receive bad news. बुरी खबर ग्रहण ही मत करो. The enemy will try to give you bad news. You say, I don't receive it. दुश्मन बुरी खबर लेके आए, बोलो मुझे सुननी ही नहीं है. See, for example, if somebody gives you a gift, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है you have to receive it. तो आपको उसको ग्रहण करना If होता you don't receive it, है. अगर नहीं लोगे गिफ्ट it's not yours. तो आपका नहीं है वो. When the enemy gives you a bad news, जब दुश्मन बुरी खबर लेकर tell आए, him, मुझे लेनी नहीं है. you tell him I don't want it. Amen? I will not take bad news because I am born from good news. मैं बुरी खबर इसलिए नहीं ग्रहण करूंगा क्योंकि मेरा जन्म अच्छी खबर से हुआ है. You know, and these pilots, you know, the air traffic control room, you know, gives this instruction. Okay, take the altitude of 10,000 feet, whatever. और ये जो पायलट्स हैं इनको निर्देश मिलता है एटीसी से कि 10,000 फीट की ऊंचाई पे आ जाओ. Because the one sitting down at the ATC is seeing the bigger picture. क्योंकि जो एटीसी पे बैठा है वो पूरी तस्वीर देख सकता है. The pilot just has a small window, he can just see clouds and sky. पायलट के सामने एक खिड़की है जिससे उसको सिर्फ बादल दिख रहे हैं आगे के. But the guy sitting at this air traffic control room, he's seeing all the flights, he's seeing what different altitudes or different aircrafts are. और ये जो पायलट जो एटीसी में बैठा है व्यक्ति वो देख सकता है कितनी फ्लाइट कहां से कहां जा रही है, कितनी हाइट पे उड़ रही हैं. In the same way, वैसे ही you can just see a little bit about your life, but the Spirit of God knows the bigger picture. आप अपनी जिंदगी के बारे में भी थोड़ा सा ही जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा पूरी तस्वीर जानता है. You know, one thing I was reading about these Old Testament saints, and if you will see one thing very common about all these saints was they were full of flaws, they were full of weaknesses, but there was one thing that was very common among all of them. और जब मैं पुराने नियम के जो संत हैं, जो महान लोग हैं, उनकी कहानियां पढ़ता हूँ, सब में एक यही बातें पाता हूँ कि उन सब में कमियां थी, सब में खामियां थी, लेकिन उस सब में एक बात सामान्य थी. There was an unquestionable obedience. बिना If you किसी read about all these saints. Abraham didn't say, Abraham, come out of your father's house. क्यों आऊं father? या आप bless कर सकते हो तो घर के अंदर भी तो bless कर सकते हो, यहाँ bless कर. You know, we do that with God. बिना किसी सवाल के वो परमेश्वर की बातें मानना जानते थे. जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम बाहर आता, उसने ये नहीं बोला क्यों आओ, अगर आशीष देने तो यहीं पे दो परमेश्वर के पिता के घर में. God tells Elijah in the times of famine, Elijah, I have prepared provision for you. I have sent provision for you, but you have to go to that brook. I forget the name, whatever that brook was. Elijah said, I have sent a raven
Eli said, why? If the raven can fly there, raven can fly here. परमेश्वर इलाजा से कहते हैं कि भूखमरी का समय है, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा हुआ है, और परमेश्वर से कहते हैं कि मैंने तेरे लिए विश्राम का स्थान बनाया, उस झरने के पास चले जा, वहां पर कौवा तेरे लिए खाना लेकर के आएगा। तो वो बोलता है अगर कौवा वहां उड़ के जा सकता तो यहाँ भिजवा दो उसको। Right? That's how we. हम ऐसे ही करते हैं। So this pilot doesn't say क्यों 10,000 के altitude में क्यों जाऊं, 3,000 में क्यों नहीं जाऊं? No, it doesn't work like that. So the pilot does not question the ATC saying why should I fly 10,000 feet, why should I fly 3,000 feet? ऐसे काम नहीं करता ये। Can I say this, church? The way you fulfill your destiny is so tied to how you respond to the voice of God. आप किस रीति से किस हद तक अपने जीवन की बुलाहट को पूरा कर पाएंगे, वो निर्भर है आप किस रीति से परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। And many times what God will tell you will not make any sense to your logical mind. और कई बार जो परमेश्वर आपसे कहेगा करने के लिए वो आपके दिमाग को समझ में नहीं आएगा। It's about obeying your father. लेकिन But yes, I also want to say this. Don't become hyper spiritual. लेकिन मुद्दा अपने पिता की बात मानने का है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि घने आत्मिक ना बन जाएं। Okay, there's a balance. I have met people, you know what they say? They say, God tells me what clothes to wear every day. मैं कुछ लोगों से ऐसे मिला हूं जो कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे हर रोज कहता है मैं कौन से कपड़े God tells me to brush my teeth, whether should I choose Pepsodent or Colgate. God said, no, this morning choose red color Pepsodent. परमेश्वर मुझे बोलता है आज सुबह मैं रेड कलर के पेप्सोडेंट से अपने दांत ब्रश करूं। I met a guy, he said, God told me, you know, I was in a bus, I was going somewhere and God told me, you know, tell them to stop the bus and just, you know, come out of the bus. मैं एक व्यक्ति से मिला और उन्होंने बताया कि मैं बस में जा रहा था और प्रभु ने मुझसे बोला कि इनको बोल बस रोके और उतर बस से। So now I'm thinking, you know, I am about to hear a very prophetic testimony. तो मैं उत्साहित हो गया कि अब कुछ खतरनाक गवाही मिलने वाली है। I was like, so what happened after that? फिर क्या हुआ भाई उसके बाद? He said, nothing, I walked home. कुछ नहीं, पैदल चल के घर आया था। Can I say this? I mean, like, of all the things, सारी बातों में some people say, I cannot hear God's voice. कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता। But of all the things, लेकिन सारी बातों में if they like a girl or if they like a boy, they hear Holy Spirit's voice, like precision, clear cut. Holy Spirit told me this, you know. वो लोग भी जो कहते हैं मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता, जब लड़की का मामला होता है बाबू भाई, या किसी लड़के की बात होती है तो एकदम से समझ लेते हैं कि यही लड़की है, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इसी से शादी करनी है। Amen. But the sad thing is, Holy Spirit tells that girl to marry somebody else. लेकिन दुख की बात ये होती है कि प्रभु उस पवित्र आत्मा उस लड़की को बोलता है किसी और से शादी करनी है। So, you know, I've sat with, counseled so many young people. I said, either you are confused, or that girl is confused, or Holy Spirit is confused. तीनों में से कोई तो confused है। तो मैं ऐसे जवानों के साथ बैठा हूँ, मैंने कहा या तो तुम कंफ्यूज हो, या वो लड़की कंफ्यूज है, या पवित्र आत्मा कंफ्यूज है, कोई तो कंफ्यूज है। If God has said it, अगर परमेश्वर ने कहा है it will come to pass. तो वो निश्चय पूरा होगा। Amen. That's why, church, we should labor to hear God's voice. इसीलिए कलीसिया हमें पूरे दिल से परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। You should desire to hear God's voice. हमें हमारे अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि उसकी आवाज